आज की जो पोयम है वो है माय मदर एट 66। कमला दास जी ने हमारे पास लिखी है, जो कि मालाबार केरला में बॉर्न हुई थी। और काफ़ी सारी चीज़ें और लिखी हुई है इन्होंने, बट इनकी छोटी सी एक जो पोयम इन्होंने यहाँ पे लिखी है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो इसमें तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग है? मैंने बताया था ऑब्वियसली पोयम का एक परसेप्शन सब लोगों का एक अपना अपना नज़रिया हो जाता है। तो व्हाट डू यू एक्चुअली, पोयम मत पढ़ना, तुम्हारी अपनी क्या अंडरस्टैंडिंग है जितना पढ़ा होगा तो। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू मी टोटली हम्म। इसके अंदर लाइक व्हाट आई वाज फैसिनेटेड आफ्टर रीडिंग दिस पोएम वाज कि शी वाज हैविंग अ रिग्रेट एज सून एज उसको पता चला कि her mother won't be like her mother is not in her twilight years, she has lost all that youthfulness and radiance. तो उसके बाद उसको एक रिग्रेट आया उसके अंदर कि अपनी मदर के लिए, जब उसकी मदर को ज़रूरत थी उसकी उस टाइम पे जहाँ पे लाइक बहुत क्रूशियल टाइम था उसकी लाइफ का, मे बी ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज जो फेस कर रही होगी, या फिर उस टाइम जब उनको किसी की केयर की, किसी के सपोर्ट की, किसी की एनकरेजमेंट की ज़रूरत थी, उस टाइम उसकी डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी. It can be like we are living in a very fast moving world, तो इसीलिए everyone has to earn their bread, and she was working and she was far away from her mother, and yeah, she is having a regret of this thing. इस चीज को cover up करने के लिए what the idea that came into her mind was to smile in front of her mother. Like ideally भी अगर हम like most of the time हम यही चीज अपनाते हैं कि we tend to smile more even if we are in sorrow, even if we are nurturing huge sorrow and pain, हम तभी एक like with a smile thinking that this too shall pass. तो उस हिसाब से तो she also did the same thing. उसके बाद still after all of that happened, still she is having a hope कि my mother will be able to live longer, I'll be able to see my mother, and a hope of light, sorry, a ray of light, confidence, and this thing in her mind, determination कि उसकी mother उसको वापस से दिखेगी as soon as she'll come back, and she'll be able to live more longer, like basically praying for her for the longevity of her mother's life. And in starting also like उनको जो childhood fear जो है, maybe she must have faced some separation anxiety with her from her mother during her initial years in her childhood days. और वही चीज, वही thought इनको वापस आता है, she like हाँ वापस से आता है as when she's heading to तो वही चीज, and that childhood fear was exactly कि her mother will, हाँ, both of these people they'll become distant, इनकी relationship जो है बहुत holistic जो है, जो peaceful इतनी है, वो धीरे धीरे करके या फिर within a certain drift वो खत्म हो सकती है. और वही वाला thought या फिर idea, emotion जो है basically वो वापस आया जब इसने अपनी mother को देखा कि she is not at all looking that like she has lost all her youthfulness, wrinkled face, looking like yeah. She is even comparing her mother, like इस level पे she is that she is comparing her mother with that of a dead body, a lifeless figure जिसके अंदर negligibly कुछ भी नहीं होता. It's totally just a corpse like figure, and ये चीज को cover up करने के लिए in order to basically get a sense of consolation, वो उस कार से जहाँ जिस कार के अंदर बहुत gloomy picture है, anything in it targeting or triggering her as compared to what is outside. अब जैसे वो trees का यहाँ पे she give a reference of the trees and the young children spilling, तो उससे we can see that she is like trying to find out something or some entity जिससे वो अपने आप को थोड़ा satisfy कर सके. वो जो उसके दिमाग में बार-बार that she struck with the realization of her mother being like her mother approaching death. तो उस thought को जिस भी way में, जिस भी manner में she can like remove past of her screen of mind, उसको करने के लिए she like she's outside of that car, trees and children, everyone, it's more merriment all around type of thing, बहुत positive vibe आ रही है, and she's enjoying it, yeah, at the last. ठीक है.
सही है, बेटर है, अंडरस्टैंडिंग कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सप्लेन सही किया हुआ है। ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन तो सबकी डिफरेंट हो जाती है, तो प्रेजेंटेशन हमें क्वेश्चन आंसर की ही करनी है। तो छोटी सी ही पोएम है विच इज़ गुड। 5 मिनट मैं भी लूँगा, ठीक है, मेरा भी परसेप्शन जान लो। ओके, सो माई मदर एट 66, वेल एक्सप्लेन चैतन्य, ठीक है। और ऑब्वियसली देखो क्या है, मतलब इसमें ये चैप्टर ना आपको कुछ फैंटेसी नहीं क्रिएट करा रहा है, इमेजिनेशन में लेके जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज एक थीम जानना भी ज़रूरी होता है। तो इट इज़ एन इमोशनल इमेजिनेशन कि विल दैट सर्टन जो पर्सन है अपनी जा रही है, अपनी मदर को छोड़ रही है, तो शी इज़ रियलाइजिंग कि मैं वापस मिल पाऊँगी या नहीं मिल पाऊँगी, ठीक है। तो ये सब थॉट्स एंड क्वेश्चन आ रहे होते हैं। एंड वी कैन सी दैट, जैसे आपने भी ये बात बोली कि इन द टाइम्स, आजकल कंटेम्प्रेरी टाइम्स में एवरीबडी इज़ रनिंग बिहाइंड मनी एंड सो, तो हम लोग काफ़ी रिश्ते नाते पीछे छोड़ जाते हैं। सो इन दैट टाइम शी इज़ रियलाइजिंग कि क्या मैं आगे उनसे मिल पाऊँगी, क्या जो है आगे मैं इनका ये चेहरा देख पाऊँगी, बिकॉज उनके फेस को बहुत बार जो है बार बार यहाँ पे रेफ़र किया गया है, ठीक है। तो यही सारे थॉट्स हैं जो उसके सामने आते हैं। एंड इट्स वेरी बट नेचुरल, लाइक आई बीइंग मैं जो है सेपरेटेड फ्रॉम माई पेरेंट्स, और मेरे पेरेंट्स अलग रहते हैं, और मैं अलग जगह रहता हूँ, जहाँ सेंटर है उसके अगली वाली गली में ही रहते हैं। तो यही हो जाता है कि अब ऐसा फील होता है कि चलो ठीक है, वो सिचुएशन थी, अब ये मन करता है कि चलो इकट्ठे रह ले, बिकॉज टाइम का नहीं पता है, तबीयत है, कुछ है, मतलब सब चीज़ें हैं। ऑल्दो दे आर वेरी हेल्दी, थोड़ा बहुत तो सबके साथ चलता ही रहता है, तो स्टिल एक कंसर्न कहीं ना कहीं रहता ही है। तो मतलब लाइक मैं भी कहीं ना कहीं मैं माई मदर एट 66 वाली स्टेज में घुसा हुआ हूँ, ठीक है। तो ऑल्दो माई मदर एंड फादर आर नॉट 66 अभी फ़िलहाल, ठीक है जी। तो ये इन्होंने बताया। So what she says that driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open, mounted, her face ashen like that of ox. You already mentioned that कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, तो पेरेंट के घर से वो कोचिन की तरफ जो है वापस आ रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। मैंने देखा मेरी मदर जो ऑब्वियसली पीछे बैठी हुई है, ठीक है, थोड़ी सी बेहोश सी थी, नींद आ रही होगी उनकी। एशन लाइक कॉप्स है, शक्ल ऐसी लग रही थी कि ऑलमोस्ट डेड बॉडी है, ठीक है। तो क्योंकि पेल हो चुका था फेस, डल हो गया था फेस, ब्राइटनेस का चमक जो थी फेस की वो सब खत्म हो गई थी। एंड रियलाइज्ड विद पेन that she thought away and looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their room. तो it's but natural, सब लोगों के साथ होता है। तो आपके सामने एक थॉट आता है किसी को देखते, यार ये मेरे सामने है, शायद कल को नहीं होगा ये। तो आई ऑल्सो समटाइम रियलाइज़ कि ना, अच्छा ये पूनम मैम मेरी बीवी है, इनसे शादी हो गई है, हालांकि हम तो स्कूल में थे, ठीक है। अब स्कूल में करते करते कॉलेज पास आउट किया, हमारी शादी हो गई। तो कभी उनको देख के ना ऐसा लगता है, फिर एक ऐसा टाइम आएगा हमारी डेथ हो जाएगी, फिर जो है हमारा ना अचानक से ओ लेट इट बी चलो कुछ काम कर लेते हैं घर का। तो यहाँ पे क्या रही है, वो थॉट को साइड लाइन करते हुए ही इज़ थिंकिंग, चलो आई शी नोज़ बैक ऑफ द माइंड उसके चल रहा है कि ऐसा होना है, बट नहीं अभी नहीं सोचना, इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी मुझे डेवलप नहीं करनी है। तो उसने बाहर पेड़ों को देखना शुरू करा। तो ऑब्वियसली जब गाड़ी तेज़ चल रही होती है तो पेड़ कैसा लगता है कि पेड़ भी बहुत तेज़ स्पीड में चल रहे हैं, तो वो चल रहा है। तो वहाँ से गाँव जहाँ से वो क्रॉस कर रही है, तो मेरी चिल्ड्रन आर स्पिलिंग, मेरी इसलिए क्योंकि ना अब ये कंपैरिजन आ रहा है, ठीक है, कि मेरी माँ तो जो है बिल्कुल डल हो चुकी है, खुशी नहीं है, अकेली भी रह रही हैं, और बच्चे वहाँ पे खुशी खुशी, वो यूथ वहाँ पे आ रहा है। तो यूथ एंड ओल्ड एज का कंपैरिजन भी यहाँ पे किया हुआ है एक तरीके का, कि हाउ यू आर इन यूथ एंड हाउ यू आर इन योर ओल्ड एज, ठीक है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू आवर्स अवे, आई लुक्ड एट अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फेयर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, कई बार ये स्टैंजा आया हुआ है बोर्ड में। तो वैन का मतलब यही है, पेल सिल्की कलरलेस, पेल का मतलब फेड येलो कलर है, एक का मतलब यहाँ पे पेन है, ठीक है, इस तरीके से पूछ लेते हैं। अब कहते हैं एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक है, तो हम लोग भी देखते हैं कोई हमें छोड़ के जा रहा होता है, बहुत टाइम बाद मिलेगा या कुछ है, तो वो थोड़ा सा इमोशनल एक फीलिंग आ रही होती है, तो उसकी शक्ल को दोबारा देखते हैं, वो प्यार, ठीक है, इमोशंस, पुरानी यादें, सब चीज़ आ रही है। यहाँ पे जो है इसने जो है इसको कंपेयर किया है एज अ लेट विंटर्स मून। लेट विंटर मून में बेसिकली क्या होता है कि जैसे सर्दियाँ होती हैं, तो गहरी सर्दियाँ होती है एक्चुअली वो, और चांद जो है धुंधला नज़र आता है, ठीक है। तो लेट विंटर्स मून कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है। दैट फेल्ट फॉर ओल्ड फेमिलियर एक, तो वही लग रहा था कि ना ये जो धुंधलापन है उनकी लाइफ का भी है, मेरे लिए भी है। इसको ये डर भी लग रहा था कि विल आई बी एबल टू सी हर अगैन,
ठीक है, और जो मेरी अटैचमेंट है, जो मेरी फीलिंग्स है, क्या मैं उनको इस टाइम पे जो मैं फील कर रही हूँ, क्या मैं उनको शायद अगली बार मैं मिलके कह पाऊँगी। बचपन का भी डर जो है, ऑब्वियसली यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि बचपन का भी डर जो है उसके सामने आ गया। तो भी हम सोच सकते हैं बचपन में बहुत सारी चीज़ों से बच्चे डर रहे होते हैं, तो उनकी माँ उनको प्रोटेक्ट कर रही होती है, एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पे अपनी माँ को उन्हें प्रोटेक्ट करना है, एंड शी इज़ गोइंग फार ऑफ अगेन। ठीक है, सो बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून। तो वही मन को मार के, ठीक है, तो ट्राइंग टू कंट्रोल योर इमोशंस वाली बात, ठीक है, और शी ट्राई टू कंट्रोल हर इमोशन एंड शी सेड चल वेल इज फाइन, ठीक है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो कहती सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो मैं मुस्कुरा के चलती गई चलती गई चलती गई। तो ये जर्नी, बस ये पूरी जर्नी जो है वो वहाँ पे ख़त्म हो गई, एंड इट वॉज अ जर्नी ऑफ लाइफ टाइम। ठीक है, एंड इट एंड्स ऑन अ नोट कि आगे का मुझे नहीं पता। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई। हाँ, ठीक है, तो ये मेरा परसेप्शन एंड व्यू था। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये थोड़ा सा ना बोर्ड्स के हिसाब से भी, अब जैसे रियलाइज विद पेन वाला था, बच्चों वाला जो क्वेश्चन है, स्पिलिंग मैरी यंग चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है यहाँ से। और आई लुकड एट अगेन लेट विंटर्स मून, ये वाला लाइंस काफ़ी बार पूछी हुई है। ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल स्माइल, ये भी पूछा हुआ, मतलब वैसे तो चारों स्टैंजाज आए हुए हैं, बट ये लेट विंटर मून और मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग वाला जो लाइंस है ना, ये काफ़ी बार आपसे 4-4, 5-5 लाइंस करके पूछ लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी स्टैंजाज वगैरह तो यू विल बी एबल टू सी। तो ये इन्होंने बताया। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें से? इसमें से नो सर। हाँ, इजी पोएम है, तो कुछ ऐसी कोई ज़्यादा वो नहीं है इसमें। ठीक है, ओके। व्हाट एल्स माय मदर एट 66 के अलावा?